Hello everyone. I welcome you all to the anthropology series that we started. In that series, this is our lecture 7, and let's take a quick overview of what we can expect from this lecture. We will be doing socio-cultural anthropology. So, the first topic of sociocultural anthropology is culture. We will be knowing the basic concepts about culture and will be taking notes of those concepts. Then we will add some value to make our answers stand out, and then we will do some previous year questions. Okay, so now let's start it. First of all, culture hota kya hai? What is culture? So comes the definition. So it is always good to give a classic definition, which is known by all the teachers and students of anthropology. Now, one such definition was given by E.B. Tyler. In which book? Primitive Culture, which came in 1871. Now, he defined culture as the complex whole. It means it is something whole and not something partial, which includes knowledge, belief, art, custom, law, morals, and any capability and habit acquired by man as a member of society. So all these things which we right now studied, हमें पता है that these are acquired by man are not these are not inherited. Like if we are born in the Indian society, that does not mean that we are born with the Indian culture. We are just born as a Homo sapien, but what we acquire then in the Indian society as a member of society makes us Indian, makes us socially Indian. But if the same child would have been born in England, तो उसके पास British culture होता ना कि Indian culture. Okay, that's why it is said that it is not inherited, it is learned. Okay, and whatever we learn through our lifetime comes in the cultural whole, like all these things we acquire through our lifetime, or even our small habits. So, culture encompasses all the spheres of our lives which we have learned as a member of society during our lifetime. Okay, so now here comes another definition because ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछ ले व्हाट इज कल्चर इन 20 मार्कर। तो जब 20 मार्कर में व्हाट इज कल्चर पूछा जाए तो गिव एटलीस्ट 2-3 definitions. Okay, so this definition is given by Gary Ferraro in 1992. He said concept of culture is everything what people have, what people think, and what people do. What people have means the material possessions that people have. So, all the material possessions that a person has acquired in his lifetime is a part of culture. Now, what people think means the thought process. It means the thought process which have been developed through the lifetime. इसीलिए हर सोसाइटी का क्योंकि अलग कल्चर होता है इसलिए हर सोसाइटी के मेंबर्स की एक अलग थॉट प्रोसेस होती है जो किसी के लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है जो किसी के लिए बुरा है वो दूसरी सोसाइटी के किसी मेंबर के लिए अच्छा हो सकता है ओके सो इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी बिकॉज द कल्चर वेरीज सोसाइटी टू सोसाइटी and what people do means the actions that people do during their lifetimes whether these are performing some rituals or some participating in some religious practices or anything they do comes in culture. Now another simple definition comes from Herkovitz, who defined culture as the man-made part of environment. This is very simple yet very wide and all-encompassing definition. Now see, man-made part of environment means anything which has been made by Homo sapien and is not naturally a part of the environment all around us is termed as culture. It means all the buildings, our clothings, and everything like our food which is not naturally available like roti, this is not naturally available in the environment. We take resources from the environment and make chapati. Now chapati is not very popular in the western culture. This is the Indian culture that we make chapati. Okay, so this is the man-made part of environment and this is our culture, Indian culture, that we make chapati. Okay, so these three definitions you must remember so that you can write them down in the examination hall if it is asked in a 20 marker. If it is asked in a 15 marker, give these two definitions. And if it
it is asked in a 10 marker as the compulsory question. Give this definition. This one is the most important one. Please remember this. Okay. So, what we come to know from these diverse definitions is that culture is very difficult and complex. इसलिए difficult है to define it in one definition. इसलिए इसकी बहुत सारी definitions हैं. Culture is such a wide concept कि आप इसे एक definition में grasp नहीं कर सकते हैं. That's why बहुत सारी definitions इसकी आई और अलग-अलग आई. Okay. Now moving on. Our syllabus also says that we have to study the nature of culture. Now see here, as I told you, culture encompasses everything. See, this is culture. Our attitude, our art, food, faith, behavior, ritual, custom, language, belief, etc. Everything comes under culture. Okay, so whatever we are as human beings is defined by our culture. Now, nature of culture is complex, of course, we know because that's why many definitions have been given. Now, this is understood by many points. किसी एक पॉइंट में आप कल्चर को नहीं समझ सकते. So, nature of culture समझने के लिए क्या करते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स ले लेते हैं. So, now let's study those points. Now, first point is culture is learned. As I told you, it is not inherited. It is learned as a member of society. Culture is learned. ये किसने कहा था? क्रीबर ने. That it is the totality of learned human behavior. Okay? So whatever we have learned throughout our lifetimes is culture. Okay? So जैसे हमने ये सीखा है कि सुबह शाम खाना खाना होता है. ओके. वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है? उनके लिए जंक फूड इज खाना. ओके. बर्गर खा लिया सुबह शाम को भी बर्गर खा लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे आप खाना सिर्फ रोटी को बोलेंगे, बाकी सारी चीजों को आप जंक ही बोलेंगे. सो रोटी इज नेसेसरी पार्ट ऑफ फूड विच इज नॉट सो इन वेस्टर्न कल्चर. सो वी हैव लर्न दिस. तो हम कितना भी बाहर का खा लें, कितनी भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो कर लें, लेकिन हम जब तक रोटी नहीं खाएंगे हमारा खाना अधूरा ही माना जाएगा. ओके. नेक्स्ट थिंग इज कल्चर इज सिंबॉलिक. नाउ व्हाट इज अ सिंबल? यहाँ पे सिंबल का मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज जो खुद के अलावा किसी और चीज को रिप्रेजेंट करती हो. फॉर एग्जाम्पल टेक दिस. इफ आई मेक अ सिंबल लाइक दिस, इसका खुद में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन हमने कल्चरली सीखा है, ये हमारा रिलीजियस कल्चर है दैट दिस इज अ वेरी सेक्रेड सिंबल. ओम. ओके. नाउ इस सिंबल का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, बट क्रिश्चियन सोसाइटी कंसिडर्स इट एज अ सेक्रेड सिंबल. ओके. सो कल्चर इज ऑलवेज सिंबॉलिक. कल्चर में आपको जैसे अब आप मान लीजिए एक घड़ा है जो चावल से भरा हुआ है. घड़ा नहीं, एक लोटा है जो चावल से भरा है. नाउ शादी करके कोई आता है, कोई दुल्हन आती है, उससे इसे पैर मारकर गिराया जाता है. इसमें खुद की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. हम किसी भी चीज को पैर मारकर गिरा देते हैं, वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन इसको पैर मारकर गिराया जाए ये अच्छा माना जाता है. ओके. सो दिस इज अ सिंबल दैट गॉडेस लक्ष्मी हैज कम टू आवर हाउस. सो दीज आर सिंबल्स. इनका खुद में कोई महत्व नहीं है. अगर आप चावल के लोटे को खुद से भरकर रख दे किसी भी एक ऐसे दिन जिस दिन मैरिज नहीं हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है. लेकिन जिस दिन मैरिज हुई है उस दिन अगर आप इसको भर के रख रहे हैं, तो इसका सिंबल है दैट गॉडेस लक्ष्मी विल कम इन द फॉर्म ऑफ आवर ब्राइड एंड शी विल एंटर आवर हाउस आफ्टर किकिंग इट. ओके. नाउ कल्चर इज इंटीग्रेटेड. अब देखिए, ऐसा होता है शादी में कि जूते चुराने की एक रस्म होती है कि जो सालियां होती हैं वो जीजू के जूते चुराती हैं. अब आप सोचिए, शादी हो चुकी है, उसके 2 साल बाद उनके जीजा जी घर आते हैं और वो जूते चुरा लेती है. तो इस चीज का कोई मतलब है? इस चीज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो जो एक रिचुअल है जूते चुराने वाला, दैट हैज बीन इंटीग्रेटेड. इंटीग्रेटेड इनटू व्हाट? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेरेमनी ऑफ मैरिज. अब जो चीजें इस दिन होनी है वो सिर्फ उसी दिन होंगी. किसी और दिन उस चीज को करने का कोई मतलब नहीं बनता है. दैट्स वाई कल्चर इज इंटीग्रेटेड. एक तो ये मतलब हो गया इसका. दूसरा मतलब हो गया दैट कल्चर इज इंटीग्रेटेड इनटू एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ. हमारी लाइफ का कोई भी एक ऐसा स्फीयर नहीं है जिसमें कि कल्चर की कोई भूमिका ना होती हो. अब वो चाहे हमारा फूड हो, चाहे हमारी क्लोथिंग हो, जैसे कि इंडिया में साड़ी, फिर वो चाहे हमारी कुछ भी हो सकता है, लाइक सोने का तरीका हो. इंडिया में नीचे सोना अच्छा माना जाता है.
तो कुछ भी हो सकता है. कल्चर इज इंटीग्रेटेड इनटू एवरी रीम ऑफ आवर लाइव्स. Next is culture is unique. In what way we are saying this? We are saying this because humans are the only one who have a moral force to tell what is right and what is wrong. Okay? No other animal has a moral force in his life which tells him कि क्या सही है क्या गलत. सिर्फ ह्यूमंस की लाइफ में कल्चर है जो उन्हें बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये रेशनल है, ये इरेशनल है. ओके? Culture is, that's why we are saying culture is unique. Only Homo sapiens have culture. सिर्फ हमारी स्पीशीज के पास ये है. That's why it is unique to Homo sapiens. Next is culture is diverse. Now see, यहाँ बोला हमने culture is unique, यहाँ हम बोल रहे culture is diverse. ऐसा कैसे भाई? Now समझने की कोशिश कीजिए. Culture is diverse in the sense कि जितनी भी सोसाइटीज हैं उतने ही कल्चर्स हैं. हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर है. तो जो किसी एक सोसाइटी के कल्चर में होता है जरूरी नहीं है कि वो किसी और सोसाइटी के कल्चर में भी होता हो. हमारे यहाँ मैरिज में जैसा कि मैंने बताया जूते चुराए जाते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस की मैरिज में ऐसा नहीं होता है, मुस्लिम्स की मैरिज में ऐसा नहीं होता है. दैट्स वाई कल्चर इज डाइवर्स. हमारे यहाँ रेड कपड़े पहने जाते हैं जब दुल्हन तैयार होती है, उनके वहां व्हाइट पहने जाते हैं. सो दिस इज द डाइवर्सिटी. दो कल्चर इज ऑल एनकम्पासिंग एंड यूनिवर्सल. हर सोसाइटी में कल्चर है लेकिन हर सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर है. तो क्योंकि हर सोसाइटी में कल्चर है इट इज यूनिवर्सल. लेकिन क्योंकि हर सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर है इट इज डाइवर्स. कल्चर के अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो डाइवर्स फॉर्म में हमें अलग अलग सोसाइटीज में देखने को मिलते हैं. ओके? नाउ कल्चर इज सिस्टमेटिक. अब कोई हैप्पीज़र्ड कलेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड बिलीफ्स को हम कल्चर नहीं बोलेंगे. कल्चर जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बिलीफ्स एंड कस्टम्स को अरेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे कल्चर में है कि पहले शादी होगी, उसके बाद चाइल्ड होगा. नाउ शादी के एक अलग रिचुअल्स होंगे, जब बच्चा होगा उसके अलग रिचुअल्स होंगे. अब आप इसको हैप्पीज़र्ड कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मानिए आप शादी से पहले अगर चाइल्ड हो गया, तो क्या ये सेम रिचुअल्स इस टाइम पे किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट कल्चर इज सिस्टमेटिक. कल्चर ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हमें ये बता रखा है कि पहले कौन सी चीज होगी, कौन सा इंस्टीट्यूशन पहले एस्टेब्लिश होगा, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, कौन सा इंस्टीट्यूशन उसके बाद एस्टेब्लिश होगा, फॉर एग्जाम्पल फैमिली. ओके? मैरिज के बाद फैमिली स्टार्ट होगी. ओके? So that's why it is said that culture is systematic. Now culture is all encompassing. It means कोई भी sphere of life ऐसा नहीं है जिसमें culture का कोई रोल ना हो. Okay? There is no, जब आप इसको explain करेंगे तो लिखेंगे that there is no sphere of life in the Homo sapiens in which culture do not play any role, or culture plays role in every realm of life cycle or every phase of life cycle of Homo sapien. Okay, so this was done. Okay, there are some other points as well which tell us about the nature of culture. Now, culture is gratifying. What does this mean? कल्चर ग्रेटिफाइंग है, इसका मतलब ये है कि कल्चर हमारी कुछ नीड्स को पूरा करता है. फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव नीड्स को कौन पूरा करता है? मैरिज. मैरिज कैसे होगी ये कौन बताता है? कल्चर. तो कल्चर बताता है कि रिप्रोडक्टिव नीड्स को कैसे पूरा किया जाएगा. इसी तरह से किस तरह से सोसाइटी चलेगी उसके लिए यूनिट्स होनी चाहिए सोसाइटी में. द स्मॉलेस्ट यूनिट इज फैमिली. अब फैमिली कैसे एस्टेब्लिश होगी ये कौन बताएगा? कल्चर. हमारा कल्चर बताता है कि जो बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट करो, जो छोटे हैं वो उनको प्यार करो. और हमारा कल्चर बताता है कि जो ये चिल्ड्रन हुए ये मैरिज के बाद ही हुए होने चाहिए, और सारे रिचुअल्स जो इनके जन्म पे होने चाहिए थे वो होने चाहिए. दैट्स व्हाई दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. जैसे कि कुआं पूजन वगैरह होता है, वो सारे रिचुअल्स हुए होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कल्चरल नॉर्म्स ऑफ दैट सोसाइटी. तो फैमिली, इस यूनिट को कौन चलाएगा? कल्चर के हिसाब से चलेगी, और फैमिली चलेगी, फैमिली से फिर एक पूरी सोसाइटी चलेगी. ओके? सो दैट्स हाउ कल्चर इज ग्रेटिफाइंग. ये हमारी अलग अलग नीड्स को पूरा करता है. कल्चर इज पैटर्न. दिस इज सेम एज कल्चर इज सिस्टमेटिक. तो सिस्टमेटिक है तो कल्चर पैटर्न भी होगा. एक पैटर्न पूरा एस्टेब्लिश होगा कि पहले क्या चीज होगी बाद में कौन सी चीज होगी. ओके? देन कल्चर इज स्टेबल. अब
हमारा कल्चर, ऐसे कहा जाता है कि हिंदू सभ्यता जो है, भारतीय संस्कृति की भारतीय संस्कृति जो है वो एक निरंतर बहती हुई सभ्यता है। इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं आया है। तो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि कल्चर इज स्टेबल। जल्दी से आप किसी भी कल्चर के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको किसी सोसाइटी में ये चेंज लाना है कि चिल्ड्रन अगर मैरिज से पहले हो गए हैं तो भी उन्हें उतना ही लेजिटिमेट माना जाए जितना कि वो मैरिज के बाद होते हैं तब माना जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, बिकॉज कल्चर इज स्टेबल। और जो चीज स्टेबल होती है वो अपने आप को जल्दी से चेंज नहीं होने देती है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज सेड कल्चर इज स्टेबल। नाउ कल्चर इज अडेप्टिव एंड मैल नाउ अडेप्टिव का क्या मतलब हुआ? अडेप्टिव मतलब जब, अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, तो सोसाइटी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, तो सोसाइटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग, तो सोसाइटी की नीड्स आर ऑल्सो चेंजिंग। अब क्योंकि सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं, तो कल्चर को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा सो दैट इट कैन सूट और इट कैन ग्रेटिफाई दोज नीड्स ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि पहले डोली में बारात जाती थी, बारात जब वापस जाती थी दुल्हन को लेके तो डोली में, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई, अब कार आ गई, तो अब क्या हुआ, कार को ही थोड़ा सा धक्का लगा के और वो कर देते हैं, अब डोली का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, सो द कल्चर अडेप्टेड इटसेल्फ, उस कार को ही डोली मान लिया जाता है। ओके, बट कल्चर इज मैल अडेप्टिव एज वेल। अब मैल अडेप्टिव का मतलब होता है कि जब सोसाइटी ग्रो कर गई हो, लेकिन कल्चर अपने स्टेबल बिहेवियर की वजह से उन नीड्स को सेटिस्फाई ना कर पा रहा हो, और उसकी वजह से फिर सोसाइटी में दिक्कतें आने लग जाए, कल्चर का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव की बजाय जो उसको फॉलो करते हैं उन पे नेगेटिव होने लग जाए। जैसे कि सती, युद्ध में जब लोग मारे जाने लगे, आदमी युद्ध में जाते थे, मारे जाते थे, औरतें घर पे रहती थी। अब सोसाइटी ने ये बनाया कि जब आदमी मर गया है तो औरत को भी उसके साथ मरना होगा। सोसाइटी ने अडेप्ट नहीं किया अपने आप को कि पोलीगैमी के लिए अडेप्ट नहीं किया, रादर देन उन्होंने क्या सोचा कि औरतों की भी नंबर कम इस तरह से हो जाएगी और पोलीगैमी नहीं फॉलो करनी पड़ेगी। तो अपने मोनोगैमी वाले कल्चर को बचाए रखने के लिए सती जैसी एक मेल प्रैक्टिस आई, जिसकी वजह से जो उस कल्चर को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो औरत उस कल्चर को फॉलो करती है उसी को नुकसान होने लगा। So that is called maladaptation of culture. Now, the next one is people use culture creatively. We always do that. We make changes to our culture according to our own needs, but those changes are minor. For example, हम जीन्स के ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं और फिर भी उस अटायर को इंडियन माना जाता है। सो दैट इज अडेप्टेशन, कि जीन्स आजकल बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल का पार्ट हो गई है तो उसी के ऊपर कुर्ता पहन लो इंस्टेड ऑफ लेगिंग्स और सलवार। इवन देन दैट अटायर विल बी कंसिडर्ड एज इंडियन। ओके, सो दैट्स हाउ क्रिएटिवली कल्चर इज यूज्ड। सो इन सारे पॉइंट्स को सम अप करने के बाद आप लिखेंगे दैट एज पर मैकेवर इट इज फेयरली रीजनेबल टू से दैट नेचर ऑफ कल्चर इज सच दैट इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स। हम एज अ होमो सेपियन क्या हैं? वी आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी विच फॉलोज अ पर्टिकुलर कल्चर, दैट्स व्हाई वी आर कल्चरल बीइंग्स। और हमारी हर लाइफ के फेज को वो कल्चर जो है वो अफेक्ट करता है, इसीलिए कल्चर इज व्हाट वी आर एज ह्यूमन बीइंग्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस इज मीनिंग ऑफ कल्चर। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा समझने का पार्ट है, सो बी विद मी। इट इज हिस्टोरिकली क्रिएटेड डिजाइन ऑफ लिविंग। अब हिस्टोरिकली है ना, कल तो आया नहीं है कल्चर कि परसों से हमारे दादा ने ये कल्चर चलाया था तो हम ये फॉलो करते हैं। नो, इट इज हिस्टोरिकल, ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। इट इज क्यूमुलेटिव न्यू थिंग्स विद टाइम। नाउ कल्चर जो है, जैसे जैसे टाइम बीतता है कल्चर अपने अंदर न्यू चीजें अडेप्ट करने लगता है और इसी तरह से एक क्यूमुलेटिव होल बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब दीपावली फर्स्ट टाइम मनाई गई तो फायर क्रैकर्स नहीं थे, लेकिन आजकल दीपावली का मतलब ही लोग फायर क्रैकर्स समझते हैं, बिकॉज कल्चर हैज अडेप्टेड इटसेल्फ टू द न्यू इवॉल्व्ड टेक्नोलॉजी, और उससे ज्यादा एंजॉयमेंट आती है, तो लोगों ने कल्चर को क्रिएटिवली यूज करके फायर क्रैकर्स को दीपावली का पार्ट ही बना दिया है। ओके, now it has roots in biology, but what has been acquired as a design of living is not biological. Now try to understand this very carefully. हमारा कल्चर डेवलप हुआ, आई एम सेइंग कि सिर्फ होमोसेपियंस के पास कल्चर है, ऐसा क्यों है? बिकॉज ओनली वी आर बाइपेडल, हमारे दोनों हाथ जो हैं
पहले क्या था, हम पहले थे 4 पैरों पर चलते थे, ओके। उसके बाद हम नकल वॉकर बने, इस तरह से। उसके बाद हम बाइपेडल बन गए। जैसे हम बाइपेडल बने, हमारे दोनों हाथ लोकोमोटिव पर्पस से फ्री हो गए, यानी कि चलते टाइम हमें अपने हाथों को यूज करने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब हम चल भी सकते हैं और हाथों को किसी और काम में भी ले सकते हैं। तो इससे हमने क्या किया, हमने टूल्स बनाने शुरू किए, और उस टूल्स को हाथ में लेकर हम दौड़ सकते थे। और कोई भी जीव ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी टूल को हाथ में लेकर दौड़े। उसे रुकना पड़ेगा, फिर उस टूल को यूज करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते, चलते चलते टूल को यूज कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ, हमने बड़े बिग एनिमल्स को मारना शुरू किया। जब बिग एनिमल्स मरेंगे, तो बिग एनिमल्स एक आदमी से तो नहीं मरेंगे, तो वी नीडेड अ ग्रुप। ग्रुप को चलाने के लिए चाहिए कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए चाहिए सोशल बॉन्ड्स, और सोशल बॉन्ड्स को डायरेक्ट करने के लिए चाहिए कल्चर। ओके। सो कल्चर धीरे धीरे तभी स्टार्ट हो गया था जब हमने बाइपेडलिज्म को अडेप्ट किया। जैसे ही हम बाइपेडल हुए, हमने बड़े जानवरों को मारना शुरू किया, हमने टूल्स को यूज करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि ग्रुप में रहकर हम एनिमल्स को मारते थे। अब ग्रुप में रहकर मारना है तो भाई रह भी साथ लेते हैं। अब रह भी साथ लेते हैं तो इसका मतलब हमने गांव बसाए। और प्लीज नो दैट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वाज गोइंग साइड बाय साइड। तो खेतों के पास ही गांव ले लिए, तो सब साथ में रहते हैं। अब रात को गांव की रखवाली करनी है, तो कुछ लोग जगेंगे भी, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। अब इस फसल को काटने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, फिर इस फसल को स्टोर करने के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए, फिर इस फसल से खाना भी सब लोग पहले साथ में बनाते थे, पूरा एक गांव। ओके। सो दिस इज हाउ कल्चर डेवलप्ड। नाउ इट हैज रूट्स इन बायोलॉजी, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली बाइपेडल नहीं हुए होते तो हमारा कल्चर डेवलप नहीं हुआ होता बाकी जीवों की तरह ही। बट what has been acquired as a design of living is not biological. अब हम खाने में चाहे जंक खाएं, चाहे चपाती खाएं या कुछ भी खाएं, that will not be told to us by our biology. It means वो inherited नहीं होगा। वो हमारा कल्चर डिसाइड करेगा कि हम क्या खाना, क्या पहनना और कैसे बिहेव करना चाहते हैं। ओके। हमारा जो वैल्यू सिस्टम होगा, हमारा जो फूड होगा, हमारी जो क्लोथिंग होगी, ये सब हमारा कल्चर डिसाइड करेगा, ना कि हमारी बायोलॉजी। तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बायोलॉजी तो सभी होमोसेपियंस की बराबर है, क्रिश्चियंस की, मुस्लिम्स की, इंडियंस की, ट्राइबल्स की, लेकिन इन सभी के कल्चर अलग अलग हैं। ओके। तो इनकी बायोलॉजी में सेम ये है कि ये सब बाइपेडल हैं, होमोसेपियंस हैं। ओके। लेकिन इन सब के कल्चर अलग अलग हैं। सो व्हाट दे एक्वायर्ड कल्चर बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, इट हैज रूट्स इन बायोलॉजी बिकॉज दे ऑल आर बाइपेडल। But what has been acquired as a design of living, that is culture, is not biological, क्योंकि कल्चर अगर बायोलॉजिकल होता तो इन सब की, क्योंकि बायोलॉजिकली ये सब सेम, तो इनका कल्चर भी सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कल्चर का हमारी बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। नाउ इट इज टोटलिटी ऑफ मेंटल, रेशनल, मटेरियल, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसको आप तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरीके से लिख लीजिए, बात वही आनी है कि कल्चर इज द सम टोटल ऑफ व्हाट वी आर एज ह्यूमन बींग्स। बायोलॉजिकली वी आर होमोसेपियंस। हम ह्यूमन बींग्स तब बनते हैं जब कल्चर हमारी लाइफ में आता है। ओके। नाउ इट एक्ट एज अ गाइड कि क्या सही है क्या गलत। जैसे कि हमारी सोसाइटी में मोनोगेमी सही है, इंडियन सोसाइटी में मोनोगेमी सही है, हिंदू कल्चर में। तो अगर आप पॉलीगेमी फॉलो करेंगे तो क्या सोसाइटी उसे मानेगी? नो। सोसाइटी कल्चर को बचाए रखने के लिए आपको अलग से बॉयकॉट कर देगी, ताकि और कोई ऐसा काम ना करे। दैट्स वाई कल्चर एक्ट्स एज ए गाइड कि आपको सोसाइटी का मेंबर, एक एक्सेप्टेबल मेंबर बने रहने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके। नाउ इट aids in deciding what is important and unimportant, what is desirable, rational, irrational, etc. as I told you right now. Now it is non genetic and is learned. ठीक है, यही वाली बात है कि it has roots in biology but design of living is not biological. Now integrates one into the society, क्योंकि कल्चर हमें बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे जीजा की यानी कि दामाद की बहुत इज्जत होती है। अब कोई एक आदमी है कि जिसका परिवार है, पूरी लोकेलिटी है मान लीजिए, ये अपने दामाद को आते हैं गाली देने लगता है, तो बाकी सब क्या इसको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं। बाकी सब इसे बुरा आदमी समझेंगे, इससे कम बात करेंगे। फिर जब इसको समझ में आएगा
कि सोसाइटी इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मेरे पड़ोसियों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी है या कम कर दी है, तब वो अपने बिहेवियर को सुधारेगा, अपने दामाद को इज्जत देनी शुरू करेगा। ओके, सो इस आदमी को सोसाइटी में कैसे रहना है वो कल्चर बताएगा। और उससे क्या होगा, कल्चर आपको सोशली ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाएगा, जिससे कि आप सोसाइटी के एक मेंबर अच्छे से बने रह सकें, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सोसाइटी से बाहर रहकर कोई भी खुश नहीं है। इसीलिए बॉयकॉट जो किया जाता है वो एक सजा के तौर पर किया जाता है, बिकॉज बॉयकॉटेड इंसान कभी खुश नहीं रहता है। नाउ इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द बिहेवियर टू ऑल पीपल, कि आपको किस तरह का बिहेवियर करना है। आपको दामाद को गाली नहीं देनी है, आपको मोनोगेमी फॉलो करनी है। इसीलिए कल्चर शेयर्ड होता है, यानी कि जितने भी मान लीजिए हिंदूज हैं, सभी ने मोनोगेमी फॉलो की, लेकिन क्या सभी एक दूसरे को बैठ के पंचायत में डिसीजन लिया था कि मोनोगेमी फॉलो करेंगे? नहीं। ये हमें धीरे धीरे टाइम के साथ, जब भी बच्चा पैदा होता है उसे धीरे धीरे टाइम के साथ समझ में आता है कि उसकी सोसाइटी जो है इस तरह का कल्चर फॉलो करती है और उसमें इस तरह के नॉर्म्स एंड वैल्यू सिस्टम्स हैं, तो उसके हिसाब से इसे चलना है। तो ये हर एक में अंडरस्टूड है कि मोनोगेमी ही रिस्पेक्टेबल होगी सोसाइटी में। दैट्स वाई कल्चर इज शेयर्ड, कि बिना कुछ बोले भी हम समझ जाते हैं कि क्या चीज एक्सेप्टेबल है और क्या चीज नहीं। तो ये बहुत हो गया एक लेक्चर के लिए आपके लिए। जो भी इसमें पॉइंट्स मैंने जो मैं बोल रही थी वो आप इसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पर लिख लीजिएगा। नाउ लेट अस सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। व्हाट इज कल्चर? यू कैन डेफिनेटली टेल। तीन डेफिनेशन अभी आपको बताई गई है कल्चर की, आप वो लिख सकते हैं अगर 20 मार्कर है तो। उसके बाद नेचर ऑफ कल्चर आपको बताया गया है। आप हर एक जो सब पॉइंट्स मैंने दिए थे उसकी क्या करेंगे, आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में एक दो लाइन की लिखेंगे, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रही थी आप वैसा का वैसा रेप्लिकेट करेंगे अपने नोटबुक के अंदर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ कल्चर? नाउ मीनिंग ऑफ कल्चर इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, वो मैंने आपको बता भी दी है। आपको इसी चीज को पैरा फॉर्म में लिखना है और आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, देन हो जाएगा। ओके, so okay, thank you for today. We will continue with culture in our next lecture, and I'll complete the topic of culture in that lecture. Okay, so see you. Bye.